Hello friends, a very warm welcome, and in today's newspaper session, which is of August 5th, August 6th, if I'm not wrong. Please correct me if I'm, it is 5th or 6th. The sixth. Okay, thank you. So my point which we are taking up first is that as we are seeing, there is a course correction with respect to stock markets. So the headline says World unites for a crash course. That means the kind of recession and the kind of volatility that we are seeing, it is not just happening in the Asian market, but all over the world. So, Mansi, can you say three key factors behind these volatility, especially with respect to the US recession fears? So one is the geopolitical factors that we can see that even the Israel-Hamas war is turning into between Iran and US. Second, we can say that already there is a kind of a bubble formation in the market that the share prices are driven by the excessive of buying, and it is not truly indicating the economic performance. The indicators, like when talking about inflation or we talk about the job creation rate, so that is not in sync with the current performance of the market. So in a way, that bubble is kind of bursting. And the third factor is, which is we know that it is majorly driven by the institutional investors who invest in large amount and who exit with large amount. So they, in a way, have decided or initiated this thing. So these are the three factors which are responsible behind Yeah, this good. crash. I think wonderful. Ashik, can you tell me one course correction point? So US Federal Reserve is looking for cutting interest rates by course correction. Hmm. And the big investor, they are pulling back the invested stocks and they are investing in government treasury bond or बाकी जगह में in Okay. gold, silver, etc. Coming to the next topic, which is talking about the rise of yen offers a mixed bag for India. So exporters are going to gain. So what is the concept behind it, Ashik? When we say any foreign currency is rising, how it is impacting India's import and export? If we say with respect to Japan, what is the concept behind it? Rise of yen, it is a mixed bag. It is said because rise of yen means rupees is depreciating against the yen. That is why Hmm. जो export it will become more competitive for India. And some Hmm. at the same time, FDI will increase from the yen, and India has a larger forex reserve. तो उसमें India will have a more liquidity with regard to the forex. तो तो इसका मतलब है कि जब हम कहते हैं then when we speak about that India is having large number of infrastructure projects funded by Japan, for example metro or bullet train, or even there are other interventions by Japan, maybe through multilateral agencies also. So in that context it is important that if yen dominated loans are there, then it will have a kind of a fluctuation, or as you just said, जो yen dominated loans हैं, then for India it will become more cheaper or more costlier. So it will be more costlier More because costlier. rupee is depreciating. So the investment or the cost बिल्कुल. increases. तो की फैक्टर यही है. बाकी मेंस के लिए डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन और जो ये एनबीएफसी की जो बात है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है. बाकी इंडिया जापान शेयर से स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, एक्सपोर्ट राइज हो ही रहा है. दैट इज up to 85% youth seeking up to 85% youth seeking non-farm jobs. So Ashik, can you tell me 5 non-farm jobs which you will be suggesting to the rural youth who are semi-skilled or maybe partially skilled? in agriculture and allied areas हो सकता है. For example, in farm equipment, then लेकिन चलो ठीक है, हाँ बोलो बोलो. हाँ, फार्म इक्विपमेंट से पहले आप बोल सकते थे कि एग्रो फॉरेस्ट्री टाइप कुछ हो, हनी yes, हो, yes, बैम्बू हो. yes, agroforestry, social का मतलब forestry. है जब आप फार्मिंग करना ही नहीं चाह रहे, जब आप फार्मिंग करना ही नहीं चाह रहे उस तरीके से, बिकॉज दे वांट नॉन फार्म जॉब्स. Yes, तो फार्म इक्विपमेंट इंडिया में मोस्टली ट्रैक्टर बेस्ड है, तो बाकी इक्विपमेंट भी होते हैं जो इसमें प्रमोट करना चाहिए, इसमें आत्मनिर्भर भारत. सेकेंड वुड बी एग्रो फॉरेस्ट्री, लाइफ स्टॉक आ जाता है इसमें, मिक्स एग्रीकल्चर में.
और They're at the same time focusing on 40 high value product artisan में बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल विश्वकर्मा स्कीम है, ठीक है। फिशरीज food फिशरीज processing industry हो फिशरी एंड फूड प्रोसेसिंग। हम्म, बोलिए मानसी। So food processing industry हो सकता है, and in technological sphere as we are seeing more integration and application of artificial intelligence या STEM sector. So that can be the areas. तो दिव्या, कौन से ऐसे 4 स्टेट हैं जो अगर हम बोले कि हाँ वहां से शुरू हो जाएगा, कौन से ऐसे 4 स्टेट हैं? जैसे आप जैम की बात करो, या या पैक्ड फ्रूट्स की बात करो, तो कौन से स्टेट लेके आओगे आप? सर, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल ले आओ, उत्तराखंड। से ला सकते हैं, जिनमें केसर या फिर जो वैसे फ्रूट्स होते हैं जिनकी वैल्यूज ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि रादर गोइंग फॉर निश, हमारे पास इतना बड़ा बास्केट है, वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ सो मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जिनमें वर्ल्ड में नंबर 1 भी है हम। वी कैन लुक फॉरवर्ड टू कि उसको कैसे परिश ना हो, और रादर देन वर्किंग ऑन फार्म्स, जो यूथ है, बिकॉज दे आर सो मच डिसइंचेंटमेंट जो हम बात कर रहे हैं वो है, तो ऐसे करके हम उसको ट्वीक कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो सोल्यूशन टू रनिंग अवे फ्रॉम इट, because it is having so many imperatives, और बेटर जो अर्निंग ऑप्शंस हैं, अगर वो बहुत कॉस्टली हैं, देन कोई भी सोल्यूशन नहीं है कि आप एग्रीकल्चर को बिल्कुल इंसुलेट करके आप चाहते हैं कि रूरल यूथ कुछ बड़ा कर ले, तो रूरल यूथ को उसी के अंदर इंस्पायर करना होगा, बट इन ए न्यू मॉडल, जिसे कहते हैं हम 2.0 या न्यू नॉर्मल। कैन यू मूव फॉरवर्ड प्लीज? यस। और यहाँ पर फीमेल की बात नहीं कर रहे हैं, तो मेल की बात तो फिर भी पूछ रहे हो, फीमेल का क्या होगा? So we must not be biased and get carried away. चलिए आगे। निक्की sees the biggest drought since 1987। तो यानी हमने वही जो अभी बात की पहले आर्टिकल में, जो यूएस इकोनॉमिक स्लोडाउन की बात हो रही है, रिसेशन की बात हो रही है, जॉब क्रिएशन कम हो रहा है, ऐसी हम बात कर रहे हैं। तो निक्की एक सेंसेक्स है, और जापान बीइंग वन ऑफ द मोस्ट industrialized nations across the world, and it is a landmark and benchmark for Asia, and definitely there are other factors also, लेकिन still this is not a very good news as far as whole world economy is concerned, which is tweaked, and which is, you can say, which is more dependent upon even western institutions, जहां पर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड इवन एशिया, जिसमें इंडिया भी आ जाता है, उसकी तरफ वो उसकी जो रियलिस्टिक पिक्चर है उसको शो नहीं करता है। तो दिस इज वन ऑफ द व्हाट आई कैन से द हार्श रियलिटीज, जो कि वर्ल्ड मार्केट या ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। चलिए आगे। अब बिटकॉइन भी हो रहा है, बिटकॉइन एंड इथर, इट इज शोइंग द वर्स्ट ड्रॉप सिंस 2021। तो मानसी, आप मुझे बताओ बिटकॉइन और इथर के अलावा 2-3 और नाम। सर, वन इज इथेरियम, आई थिंक वो इथर ही है, इथेरियम तो। ठीक है, औशिक आप बताइए। सर सोलाना, देन ADF, Tether, and सर डॉजीकॉइन। हाँ डॉजीकॉइन, यस। सो सबसे पहले अब करुणा, आप बताओ व्हाट इज बिटकॉइन? व्हाट इज बिटकॉइन? सब वर्चुअल करेंसी की तरह काम करता है और डिसेंट्रलाइज्ड। वर्चुअल है कि क्रिप्टो है? क्रिप्टो करेंसी है जो कि वर्चुअल करेंसी की तरह काम करता है, और मनी की तरह, मनी की फॉर्म में आप उससे पेमेंट कर सकते हैं, एंड डिसेंट्रलाइज्ड होता है सिस्टम। औशिक, क्या ये सही है बिल्कुल जो बोला? की एस्पेक्ट यहाँ ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन, करेक्ट। डिसेंट्रलाइज, हाँ, बिना ब्लॉकचेन का बिटकॉइन नहीं हो सकता, इथेरियम नहीं हो सकता। मानसी, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ेंगी तो बिटकॉइन गिरेगा कि उठेगा? सर दोनों डायरेक्शंस में बड़े बड़े मूव्स होंगे। ओके, एक एक कारण बता दो जल्दी से। सर मतलब कारण यही है कि फर्स्टली तो ये रेगुलेटेड नहीं है, तो इसलिए अगर जो टेंशन बहुत ज्यादा इंक्रीज होंगी, तो जैसे अभी हम देख रहे हैं कि क्रैश भी बहुत बड़े अमाउंट का होगा, क्योंकि इट इज फंक्शनिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। So there is no regulator who can intervene and ensure that there is stability in the price movements, or there is there are certain measures to ensure the interest of the investors also.
ओके, ठीक है। That is one. मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक प्लीज। तो हमारा टारगेट है कि पाम ऑयल आउटपुट हम 2032 तक 6 फोल्ड राइज करेंगे, Yes. 6 फोल्ड। तो कैसे होगा औषिक, कैन यू टेल मी 3 पॉइंट्स, कैसे होगा? सब India has a palm oil space zone, for example in north east Andaman and Western Ghat. तो वहाँ पर इंसेंटिव दे सकते हैं, उनकी प्लांटेशन इकोनॉमी ऑलरेडी एक्सपर्टीज है इंडिया में। तो रादर देन टी प्लांटेशन वहाँ पर भी स्टैग्नेशन आ चुका है विद रिगार्ड टू प्राइसेस, तो इसको अगर इंसेंटिव देंगे तो पाम ऑयल हो सकता है। फिर विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट, उनके थ्रू दे सकते हैं, स्किलिंग करा सकते हैं, प्लस एक्सपर्टीज जो इंडोनेशिया और मलेशिया का वो इम्प्लीमेंट। कितना कितना मैट्रिक टन हम इंपोर्ट कर रहे हैं ऑयल हर साल? करुणा, So I'm not aware. सामने लिखा हुआ है भाई, अवेयर तो कुछ नहीं है कोई भी, मुझे पता है। 13 से 14 मैट्रिक टन, ठीक है। जी सर। हाँ, सामने लिखा है, अवेयर कुछ नहीं हो, पता है वो, फॉर ग्रांटेड है। चलिए आगे। अच्छा, इससे पहले प्रेरणा, ये बताओ, मलेशिया और इंडोनेशिया के अलावा कौन सी कंट्रीज हैं जहां से हम कुछ मंगाते हैं, जैसे सनफ्लावर ऑयल, सोया? सर सनफ्लावर ऑयल तो जैसे रशिया यूक्रेन से मंगवाते हैं, और ब्राजील और अर्जेंटीना ठीक है, से ओके, सोयाबीन चलिए, ऑयल। ओके, ठीक है। सेबी अमेंड कर रहा है म्यूचुअल फंड नॉर्म्स टू चेक फ्रंट रनिंग। मानसी, व्हाट इज फ्रंट रनिंग? So front running is when you're not disclosing the information, या फिर आपके पास कोई internal price sensitive non public information है, and then you're using that to make your investment until that gets public. So that is called insider trading भी, या front running specifically mutual funds के केस में यूज होती है। यानी दिखाना कुछ और है कुछ और। जी सर। So what amendment SEBI had done in simple words? So जो it एक has नंबर पे आएगा। हाँ जी, it has introduced certain new norms regarding the mutual funds management companies. So you'll have, in this case, we'll be able to identify the mechanisms and properly, like sir, it is when we talk about insider trading, one question is whether this is legal or illegal. So it is not illegal in India. There are certain norms कि आपको timely disclosure करना पड़ेगा if you are an employee of यानी a कि certain company and यानी आप कि उसी अमेंडमेंट, company। अमेंडमेंट कहता है यानी कि इनहैंस सर्वेलेंस सिस्टम जैसा कि बढ़ा देगा, और इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स को भी सेबी इज गोइंग टू लुक इनटू, और एस्केलेशन प्रोसेसेस को भी फास्ट कर देगा। बेसिकली जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसको और ज्यादा स्ट्रीमलाइन कर रहा है, जैसे कि हम करने की कोशिश कर रहे हैं। am I right? हाँ जी सर। फ्रंट रनिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, मिसयूज ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जैसा कि हमने पढ़ा। चलिए नेक्स्ट। Okay, before we go move forward, there is one more keyword here. National Financial Reporting Authority. Ashik, क्या है? So National Finance Reporting Authority is a statutory body. It was formed in 2020 2013 में हुआ था, ऑन द 17 में हुआ था, ऑन द बेसिस ऑफ कंपनीज एट 2013। उसका काम आता है विद रिगार्डिंग टू ऑडिटिंग और सीए को मॉनिटर करते हैं। जो सीए का काम होता है ना सर, इन चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको मॉनिटर करना, उनका स्टैंडर्ड होना चाहिए कैसा, फिर उसी हिसाब से। Okay, चलिए नेक्स्ट। Should RBI target only core inflation? है दिव्या, गुड आइडिया कि बैड आइडिया? अगर आरबीआई सिर्फ कोर इन्फ्लेशन को टारगेट करे, गुड आइडिया कि बैड आइडिया? सर बैड आइडिया। फूड वो नहीं आते, इसमें हेडलाइन इन्फ्लेशन में जाते तो उसका इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल सही बात है। औशिक, आप बताइए कि आरबीआई को क्या टारगेट करना चाहिए कोर इन्फ्लेशन के अलावा, जो मतलब हेडलाइन इन्फ्लेशन, या जैसे बात हो रही है कि भाई इन्फ्लेशन एक बिगर चैलेंज है टारगेट करना, और मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्वियसली हमारे यहाँ सेंसिटिव है, जॉब मार्केट है, और बाकी हम डेली बात करते ही हैं। तो कैसे होगा, क्या करना चाहिए? सो कोर इन्फ्लेशन फूड एंड फ्यूल नहीं है, तो अपार्ट फ्रॉम कोर, फूड एंड फ्यूल को भी ट्रैक कर सकते हैं, और सेम टाइम
हम लोग इम्पोर्टेड हम्म। इन्फ्लेशन फोकस कर सकते हैं कि कुछ कुछ इन्फ्लेशन इम्पोर्ट के कारण नहीं होता है, तभी हम लोग हम्म। डाइवर्सिफाई ऑफ इकोनॉमी पे फोकस कर सकते हैं, रॉ मटेरियल फोकस कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम फ्यूल और फूड दोनों ही वोलेटाइल है। फूड ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज, एग्री प्रोड्यूस सब में उसके कारण होता है, एंड द फ्यूल फ्रॉम द जियोपॉलिटिक्स शिफ्ट, क्योंकि इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। मानसी, ये बताओ कि जो जॉब एम्प्लॉयमेंट्स है इंडिया में, जॉब कंडीशंस है, क्या उसका रिटेल इन्फ्लेशन में कोई इम्पैक्ट है? तो हाँ जी सर, दोनों का रिलेशनशिप है, क्योंकि वो फिलिप्स का हमें रिलेशनशिप है, डिनोट लेकिन क्या करता है। रिटेल में कोई इम्पैक्ट है? जॉब कंडीशंस का रिटेल इन्फ्लेशन पे रियली में कोई इम्पैक्ट है? सर होगा, अगर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी तो लोगों हम्म। की इनकम भी बेटर होगी, कंज्यूमर डिमांड भी इंक्रीज होगी, तो डिमांड ड्रिवन भी इन्फ्लेशन हो सकती है इफ द सप्लाई इज नॉट एडिक्वेट टू मीट। तो एक ही रिलेशनशिप है। हम्म। हाँ, और बात सही है, वो आपने ठीक बोला। जैसे आर्टिकल तो बोलता है कोई बियरिंग नहीं है, लेकिन बियरिंग है। और दूसरा, ऑब्वियसली 4% का टारगेट रखता है आरबीआई, कि उसके अंदर एग्रीकल्चर आउटपुट और ऑयल इंपोर्ट जो हमने अभी बात की, और बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी हम इंपोर्ट कर ही रहे हैं, तो ये मेजर फैक्टर्स है। तो इसीलिए आरबीआई जो है, जैसा कि अभी औशिक ने भी बोला, आप जब दोबारा भी रिविजिट करके सुनेंगे समझेंगे तो अ, उसका एक ब्रॉड स्फेयर है। ओनली कोर इन्फ्लेशन को टारगेट करना is not really suitable for India as of now. चलिए नेक्स्ट। तो वी कैन से कि कोर इन्फ्लेशन तो हम अच्छे से टैकल कर ही पा रहे हैं, बट हमारे लिए चैलेंज फूड इन्फ्लेशन हो रहा है, बिकॉज सप्लाई चेन डिसरप्शंस की वजह से उसके पीछे जो रीजन है, मॉनेटरी पॉलिसी डिमांड साइड फैक्टर्स को अच्छे से एड्रेस कर पा रही है। तो उसमें एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि क्लाइमेट मिटिगेशन टारगेट जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी उसको भी इंक्लूड करना चाहिए जब मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन अनाउंस किए जाते हैं। मैं वही सोच रहा था, आप लोगों ने मानसून क्यों नहीं बोला? मानसून का भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल है ना। और ऊपर से जैसा हम देख रहे हैं अभी, जैसे आप वायनाड में देखो तो वहां पे भी बात है, बात सिर्फ वायनाड की नहीं, इट्स जस्ट अ एग्जाम्पल। बाकी सारा उसका रिपल इफेक्ट जाते हैं सब जगह। चलिए नेक्स्ट। कौशिक, ये किस तरह के एथिक्स का एग्जाम्पल है पद्मश्री अवार्डी को 7 करोड़ फ्रॉड के लिए पकड़ा गया? उनको केसेस है, पकड़े भी नहीं है, ये वाज अरेस्टेड। चलिए बताइए। सर सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक केस हो सकता है सर, और अनएथिकल। एट द सेम टाइम बताइए, करुणा आप बताइए। दिव्या। प्रेरणा आप बोलो। दिव्या, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अगर आप बोलना चाह रहे हैं तो। तो इसमें बोल सकते हैं कि मॉरल अकाउंटेबिलिटी को अपहोल्ड नहीं कर पा रहे हैं सोसाइटी के अंदर, और जो हम्म। ट्रस्ट और इंटेग्रिटी अवार्ड के साथ भी रिलेटेड है उसको भी हम्म। डैमेज कर रहे रेपुटेशन उन्होंने को। बेसिकली बेसिकली उन्होंने पब्लिक से पैसा उन्होंने रेज किया अपनी फर्म्स के नाम पे, और फिर उसको उसको कर दिया, साइफंड ऑफ हो गया वो। तो जो उन्होंने 62 लोगों से 8 करोड़ रुपए इकट्ठा किया, दैट वाज डन ऑन द गुडविल। तो ऑब्वियसली इट इज एन एग्जांपल ऑफ public mistrust, it is an example of professional misconduct, it is an example of ethical unethical behavior I should say। कॉर्पोरेट का इसमें कोई लेना देना इस बात से नहीं है। ये है बात कि जीवन में यदि आपको कुछ मिला है तो आप उसको फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, यही ये बात बताना चाहते हैं। हाँ सर। तो अब हम ये सारी चीजें भी मैनेज की गई हैं। इंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड भी हो सकता है मैनेज किया गया हो, दैट्स व्हाट वी कैन से, वी आर नॉट श्योर, इट कैन बी एलिज्ड। चलिए आगे। इंडिया और अफ्रीका फूड सिक्योरिटी में पार्टनर हो सकते हैं, बताओ दिव्या कैसे? सर, जब हम अफ्रीका की बात करते हैं तो जो इक्वेटर के पास वाला एरिया है वो, वहाँ उस एरिया में जैसे फूड है या फिर जो और भी प्रोडक्ट्स है वो इंपोर्ट किए जा सकते हैं, और यहाँ से जैसे हम फूड। दाल कहाँ से मंगा रहे हैं? दाल बताओ, दाल और तिलहन अफ्रीका में कहाँ से आती है? कंट्री का नाम बताओ। कौशिक आप बताओ। मैदागास्कर सर।
और और मेडागास्कर से या फिर केन्या से मंगाते हैं। और मोजाम्बिक, आर यू श्योर मेडागास्कर? हाँ सर, मोजाम्बिक है, हाँ सर। मोजाम्बिक है, तंजानिया है। तो पार्टनर्स इन फूड सिक्योरिटी, इंडिया एंड अफ्रीका। मानसी, फैक्ट्स बताओ कैसे होगा? सो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कॉपरेशन की बात करते हैं, एक फंडिंग की प्रॉब्लम है जो अफ्रीका फेस करता है, तो उस केस में इंडिया उस गैप को फुलफिल कर सकता है। एंड जो फिर फर्दर वी कैन से कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है उसके थ्रू अफ्रीका कैन ट्रांसपोर्ट दी फूड ग्रेन्स टू इवन इंडिया आल्सो या बाकी कंट्रीज में भी। सो दिस कैन बी वन ऑफ द एरिया, एंड इसी में हम स्पेसिफिकली न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को भी साथ में एड्रेस कर सकते हैं। द चॉइस ऑफ क्रॉप्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वी कैन टॉक अबाउट, एंड द एक्सटेंशन सर्विसेज। एट द सेम टाइम सर वी कैन से कि अफ्रीकन कंट्री कुछ, फॉर एग्जाम्पल सूडान, ये सब फूड क्राइसिस, फूड कैलेमिटी, फैमिन, ये सब झेलते हैं, वो इंडिया नहीं झेला है पिछले 70 साल में। तो इंडिया सीख सकता है वो। इंडिया कैन गिव एक्सपर्टीज बिकॉज इट इज इन, और ग्रीन रेवोल्यूशन में इंडिया लीड करता है। तो हाई यील्डिंग क्रॉप्स हो गया ग्रीन रेवोल्यूशन के वो पॉइंट्स इंडिया बता सकता है जो इंडिया की गलतियां हुई हैं, वो अफ्रीका बजाय नेक्स्ट सेंचुरी भी अफ्रीका की है, वो हो सकता है। हाँ अंडर फंडिंग की तो बात है ही, पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ाई जा सकती है, और सब्सिडीज को भी रिफॉर्म करने के लिए इंडिया उनको आइडिया दे सकता है। पॉवर्टी रिडक्शन और सोशल स्पेंडिंग के लिए भी इंडिया आगे आ सकता है। तो यूनाइटेड नेशन का जीरो हंगर गोल कब का है वार्षिक? 30 सर। 2030, यस, 2030 तक हो सकता है। वो अभी नहीं हो पाएगा। इंडिया का G20 का लीडरशिप है, वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। साउथ साउथ कॉपरेशन बोल सकते हो। तो दीज आइडियाज वी कैन रियली ब्रिंग इट व्हेन वी टॉक अबाउट एग्री फूड रिलेशंस। प्रेरणा, एक अफ्रीकन कंट्री का नाम बताओ जिससे इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। सर साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की कैपिटल? सर 3 है आई गेस, वेरी आई गुड, डोंट रिमेम्बर द नेम। तो बता दे। नहीं पता सर। ओके, औशिक, व्हाट इज ए क्लॉक? व्हाट इज इट सर? क्लॉक, क्लॉक, इट गिव्स, व्हाट इज इट? गिव्स टाइम। yes sir, अच्छा, it showcases time, it has a 24-hour schedule. you can, Clock, you can just say clock measures time. clock, yes, measures time. Clock measures time, that's all. It showcases time, it gives time, it eats। ये तो थोड़े क्या जरूरी है। मानसी, हाउ डिड क्लॉक्स चेंज शिपिंग? नेविगेशन में कैसा हुआ बताओ? So we were helped through clock in a way कि exact timings हमें पता लग गई। So जो shipping के through, compass के through हम time measure करते थे, पेंडुलम एक क्यों clock। फेल हो गया? शिप के केस में पेंडुलम फेल क्यों हो गया? So because again वहाँ पे stable movement नहीं होता था I think ship का। बिल्कुल। ओके, करुणा, क्वार्ट्ज क्लॉक कैसे काम करते हैं? औशिक, सर quartz crystal है, it vibrates with the use of electricity, and उसको बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक करंट, उसे वाइब्रेट करता है अप्रोक्सीमेटली 30,000 वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। तो उसके कारण ही मूव फेरो करते हैं सर, पीरियोडिक मूव। ओके प्रेरणा, इन एटॉमिक क्लॉक क्या होता है? मानसी? The atomic clock is more precise and more to the point, सोर्स chances of error उसमें क्या कम है? होते हैं। पावर सोर्स क्या है एटॉमिक क्लॉक का? सर लेजर है, लेजर है। और functions of इंडिया laser। में कहाँ पर है? इंडिया में जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है वो कहाँ पर है? मतलब कहाँ रखा हुआ है एटॉमिक क्लॉक को? So I'm not aware of this। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली, वहां पर हमने कीजियम या सीजियम बोलो, एटॉमिक क्लॉक हमने एनपीएल में लिखा हुआ है, वो मेंटेन करता है इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम। बहुत सारी कंट्रीज अभी नए बना रही हैं, लेकिन इंडिया ऑब्वियसली, इंडिया का भी अपना एक रोल है, एक स्टैंडर्ड है। और कुछ फिजिसिस्ट ने तो न्यूक्लियर क्लॉक्स, जो मतलब नेक्स्ट जनरेशन डिवाइसेस हैं, वो न्यूक्लियर क्लॉक्स, एटॉमिक क्लॉक्स के बाद नेक्स्ट जनरेशन उन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं, जिसके अंदर रेजोनेटर्स अलग अलग हैं। यानी मतलब न्यूक्लियर जो है स्पेसिफिक एटम्स के होंगे, होल एटम का नहीं।
स्पेसिफिक एटम यानी और भी यानी माइन्यूट आप आगे जा रहे हो, उससे आप देख सकते हो कि मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ अ वेरी फैसिनेटिंग एंड यू नो एनर्जी सोर्सेज अगर कोई और उन्हें इम्पैक्ट कर रहा है, जैसे स्ट्रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है या कुछ और है, वो भी उन पर असर नहीं डाल पाएगी। हॉर्टिकल्चर क्लस्टर, औशिक, क्या होना चाहिए हॉर्टिकल्चर क्लस्टर में यूनिक, और कैसे कामयाब होंगे? So horticulture clusters should focus both first on high value product. For example, उत्तराखंड कुछ जीरो टैग वहाँ पर एप्पल हो गया, बिहार के अंदर में मखाना हो गया, तो वो सब भी एक्सपर्ट आ सकता है। सेकेंड, एट द सेम टाइम वेजिटेबल एंड फ्रूट्स उस पर फोकस कर सकते हैं टू मीट द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। तो क्लस्टर है इंडिया में। तो इन जीआई टैग ओवरऑल इंडिया में हर जगह फैला हुआ है, फ्रॉम मैंगो इन महाराष्ट्र अल्फोंसो, तो हर एक मैंगो का दिया हुआ है, इवन कोकोनट का है। उसके बाद फिर तो उस पर फोकस कर सकते हैं। एट सेम टाइम ओके मॉडल हो सकते हैं जो हम लोग ना, कर सकते फिर ना ऑन डोर स्टॉप डिलीवरी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? लीकर की ऑन डोर स्टेप डिलीवरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सर बहुत आर्ग्यूमेंट्स हैं कि बेनिफिशियल इसलिए रहेगा क्योंकि जो बाहर ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस हैं ये सब डिक्रीज हो जाएंगे, वायलेंस टुवर्ड्स वुमेन एटसेट्रा, ये इश्यूज थोड़े कम हो जाएंगे। वायलेंस टुवर्ड वुमेन कैसे कम हो जाएगा घर में दारू पीने से? चना तो तुम ही दोगी, कैसे होगा? सर बाहर नहीं, होम बाहर डिलीवरी होगी, फीमेल तो हाँ ज्यादा, फीमेल को ज्यादा टेंशन है, फीमेल को तो ज्यादा प्रेशर है अगर घर पे ही दारू आके मिल रही है तो। हाँ सर वो भी एक आर्ग्यूमेंट है कि जो सोशल हम्म, इशू जैसे वायलेंस है वो भी इंक्रीज हो सकता है, बट हम्म, बाहर के जो क्राइम्स है वो कंपैरेटिवली डिक्रीज हो जाएंगे, और प्लस जो टैक्स वगैरह का बेनिफिट है वो तो गवर्नमेंट को जाएगा ही। वो तो वैसे भी जाएगा। आपका क्या कहना है करुणा? में लीगल चैलेंज आ सकता है, जैसे जो एज रिस्ट्रिक्शन होता है वो कैसे हम मेक श्योर करेंगे डोर स्टेप करेक्ट, वेरी गुड डिलीवरी। पॉइंट, यस। हम्म, बिल्कुल सही बात है। और कोई पॉइंट मानसी? आई थिंक ब्लैक मार्केटिंग भी कम हो सकती है, बिकॉज लीगली होगा, इसको हम ट्रांसपेरेंटली ट्रैक कर सकते हैं अगर डोर स्टेप डिलीवरी होगी तो। तो तो कौशिक एज ए डीसी आप क्या करोगे? सरकार पूछेगी तो। सर अगर गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टिव दिया रहेगा तो फिर वी कैन पार्टनर विद द ई कॉमर्स इंडस्ट्री टू फॉर क्या दोस्त जोमेटो हो यानी गया, नई स्विगी हो गया, जनरेशन है? उनके साथ। चलो ओके। और जैसे एक और अभी आया था बजट में कि लैब केमिकल पे कस्टम ड्यूटी हाइक कर दी है, तो क्या कारण है दिव्या? मानसी? तो ये देखा गया कि मिसयूज जो स्पेसिफिकली रेप्यूटेड साइंटिस्ट या ऐसे पब्लिक फंडेड रिसर्च लेबोरेटरीज है इंडिया में, सो सोशल मीडिया पे ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि मतलब इजी अवेलेबिलिटी ऑफ केमिकल्स है या मिसयूज ऑफ केमिकल्स हैं। हॉर्स रेसिंग में हम कह सकते हैं कि जो बात हुई कि भाई जीन जो रेस हॉर्सेस को हेल्प करता है बीपी मैनेज करने में, ह्यूमन एथलीट्स को भी कर सकता है, तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। आप कह सकते हैं इनोवेशन का एग्जांपल है, आप कह सकते हैं ह्यूमन क्यूरियोसिटी का एग्जांपल है, आप कह सकते हो ह्यूमन जो जीजी विशा जिसे हम कहते हैं, जीने की चाह, वो इंसान को आगे तक लेके जाती है और इंसान को नए नए आइडियाज करवाती है। तो इंस्पाइट ऑफ ऑल द नेगेटिविटी, इंस्पाइट ऑफ ऑल द डिजास्टर्स, इंस्पाइट ऑफ ऑल जो भी रॉन्ग है, वो आदमी फिर भी चाहता है वो आगे बढ़े। सेम आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। जैसा कि इसलिए मैंने प्रेरणा से पूछा भी था कि भाई जब कोई और मरेगा तो क्या आप साथ में मर जाओगे? तो मरना कोई नहीं चाहता, अगर बचना है तो कर लीजिए और खुश होकर करिए। औशिक, जो ये नीचे विजुअल हम देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन, क्या नाम है इनका और ये कौन थे? मानसी? नहीं पता सर हम्म, कितना। हाँ समझ। बड़े फेमस आदमी हैं एज फार एज आई अंडरस्टैंड, और ये बहुत ही पीसफुल थे। ऑटोनॉमस एक बॉडी है यूएन की, उसके डायरेक्टर जनरल थे, सर मुझे रिलेटेड याद। टू एटॉमिक एनर्जी है बट। हाँ, इंडियन एटॉमिक एनर्जी के थे ये चीफ। इनका नाम है अहमद अल बरदाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं दे देता हूँ। हाँ, पता होना चाहिए औशिक आपको। यस सर। हम्म।
50 साल की दोस्ती रोज ये आ ही रहा है। तो आर्मी का रोल है पॉलिटिक्स में, हमने पहले भी चर्चा की है। इंडिया का एटीट्यूड पॉजिटिव रहा है, इंडिया ने इंटरवेंशन नहीं किया है। तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड औशिक? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर अस? 3 एस्पेक्ट है इसमें। पहला है कि आप जो न्यू गवर्नमेंट बनेंगे उनके साथ आप वापस से पीपल टू पीपल कांटेक्ट और बाकी माइनॉरिटी को सेफ गार्डिंग उनके ऊपर हो गया, या फिर जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट था जो शेख हसीना गवर्नमेंट के समय में था वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं विद द न्यू बीएनपी, और जो मोहम्मद यूनिस जो प्रेसिडेंट बनेंगे उनके अंडर में जो गवर्नमेंट बनेंगे इंटरिम गवर्नमेंट। एट द सेम टाइम इंडिया कैन ऑल्सो टॉक अबाउट कि कैसे हम लोग लॉन्ग टर्म में काम कर सकते हैं साथ में टू काउंटर चाइना एंड यूएस, क्योंकि इंडिया का अप्रोच बांग्लादेश से रियलिस्ट भी है और आइडियलिस्ट भी है। आइडियलिस्ट अभी था विद शेख हसीना, अभी भी है, लेकिन इंडिया को रियलिज्म यूज करना चाहिए टू टैकल द इशू इन बांग्लादेश। रिलीजन, कैसे? रिलीजन यूज करना चाहिए। रियलिज्म। और रियलिज्म। दिव्या, जो दो जॉइंट प्रोजेक्ट्स हैं, कोई नाम बताओ जो रोड और रेल लिंक इंडिया और बांग्लादेश का नाम, जो जो फैक्ट के फॉर्म में इंडिया बांग्लादेश की जो कनेक्टिविटी है उसको उसको कहां से कहां जोड़ते हैं? 2 नाम बताइए। चटगांव और के साथ जोड़ते हैं, और पोर्ट के थ्रू जो बांग्लादेश से म्यांमार के साथ कनेक्टिविटी के लिए भी आपको किया गया है। एग्जैक्टली पता होना चाहिए। अखुरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक एक एग्जांपल है, और खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन एक दूसरा एग्जांपल है, जो कि यहाँ पे दिया भी हुआ है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि इंडिया को क्यों जरूरी है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का एक्सेस पूरा वरना हमारा घूम के होगा। वो 22 किलोमीटर सिर्फ सिलीगुड़ी के वहां से जो कॉरिडोर है वो सिर्फ 22 किलोमीटर है। इट इज ए स्ट्रेटेजिक जोन और चाइना का भी एलिमेंट है। और देर आर बस रूट्स ऑल्सो बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। कनेक्शन में कोलकाता है, अगरतला है, गुवाहाटी है, ये सब ढाका से जुड़े हुए हैं। और चिटगांव का जैसे आपने बताया, और मोंगला पोर्ट का वो भी। तो आपको ये चीजें टिप्स पे होनी चाहिए। और मिलिट्री कूप हुआ, ठीक है, हमने माना, लेकिन हमारा काम है जो भी सरकार आएगी उसके साथ हमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से हमें उनको आगे बढ़ना चाहिए, निगोशिएशन होने चाहिए। और इंस्पाइट ऑफ नेगेटिविटी फॉर इंडिया, जैसा कि हार्बर होगा, जैसा कि हमने मालदीव के केस में भी देखा था, देन इंडिया मस्ट बी प्लेइंग अ वेरी पेशेंट गेम। इंडिया को अपना टाइम अवॉइड करना है, इंडिया को रिलैक्स रहना है। जैसे हम लोग भी बोलते हैं, मान लो हमें कोई सेशन करना है, एक ने नहीं किया, दूसरे को बोला, दूसरा भी भूल गया, तीसरा भी भूल गया, तो ऐसा नहीं है। हमें फिर भी पेशेंटली उसको आगे बढ़ना है। हमें अपनी गलती को ज्यादा वो नहीं करना है। ठीक है, गलती हर कोई कर सकता है, एवरीबडी हैज गॉट अ मूड एंड एवरीबडी हैज गॉट अ माइंडसेट। तो उस एंगल से ही हमारा इंडिया बांग्लादेश का जो रिलेशन है वो स्ट्रैटेजिक है, लॉन्ग टर्म है। अभी बांग्लादेश के जो गारमेंट्स इंडिया से जब यूरोप जाने होते हैं तो वो वाया दिल्ली जाते हैं। एयर लॉजिस्टिक्स में इंडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, जबकि होना ही चाहिए कि इंडिया के गारमेंट्स बांग्लादेश से चीप होने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। तो देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स लिंक विद इट। तो यू हैव टू सी कि कैसे एक ब्रॉड एंगल से आप देख सकते हो, जैसा कि औशिक ने कहा, एज लॉन्ग एज इट इज कमिंग अप वी कैन टेक अप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स। एफटीए की बात भी है, एक अगर एफटीए हो जाएगा तो उससे भी हमारे जो कस्टम ड्यूटी है तो रिड्यूस हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगी, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। चलिए आगे। अब यही दूसरा एक और आर्टिकल जैसे सामने आया कि ढाका को हमने वॉच किया, दिल्ली शुड एक्सरसाइज कॉशन। तो कॉशन यही है कि वी हैव टू बी पेशेंट। जैसा मैंने अभी कहा, सिचुएशन इंडिया के अगेंस्ट टर्न हो सकती है जब हम उनको ज्यादा हाई हैंडेडनेस दिखाएंगे, ज्यादा बिग ब्रदर एटीट्यूड होगा। अगर हमारा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है तो वो हमने फॉलो पहले भी किया, अब भी कर रहे हैं। काठमांडू के केस के अंदर जब वहां पर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी के रिस्टोरेशन के लिए डिक्टेटोरियल मोनार्किकल रूल को अगेंस्ट लोगों ने जब प्रोटेस्ट किया, देन इंडिया डिडंट इंटरवीन इन बिटवीन, क्योंकि लोग सोचते थे कि इंडिया प्रो मोनार्की है। ऐसे ही भी लोग सोचते हैं इंडिया प्रो हसीना है। तो इंडिया हैज टू गिव एन इंप्रेशन दैट वी आर प्रो पीपल। इट इज देयर डेमोक्रेटिक चॉइस, दे आर डूइंग इट, वी हैव नो इश्यूज विद दैट, वी आर रेडी टू वर्क, वी आर रेडी टू सपोर्ट। और इसी एंगल से करना पड़ेगा। सिर्फ 1971 वॉर मैंने लिबरेट किया, ये वाला जो नैरेटिव है, अगर ये नैरेटिव आम बांग्लादेशी को तंग करता है और जमात इस्लामी या बीएनपी वो चाहते हैं कि इस्लामिक आइडियल्स को ज्यादा आगे प्रमोट किया जाए, तो उसको इंडिया को देखना है कि इट मस्ट नॉट प्ले इनटू द हैंड्स ऑफ पाकिस्तान और इवन चाइना। सेपरेटिज्म और या बाकी जो एलिनेटेड एलिमेंट्स हैं इन द लॉन्गर रन, जो हमारे साथ जो
टेररिज्म या एंटी इंडिया एक्टिविटीज है उनको फोकस करने की बात है स्ट्रेटेजिक तरीके से. देयर आर सेवरल क्वेश्चंस व्हिच विल बी इमर्जिंग, so that's how it is happening. Similarly, अब हम डायरेक्टली कह रहे हैं कि पीएम हसीना जो है ऑथोरिटेरियन पॉलिटिक्स को करती थी, तो वो हमने इसलिए कहा क्योंकि लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया. आज तक हमने उनको दबे मुंह से कहा होगा लेकिन ओपनली ऐसे नहीं कहा. तो हाई स्टेक रिलेशनशिप क्यों है? क्योंकि डेमोक्रेटिक था, दो इट वाज नॉट ए परफेक्ट डेमोक्रेसी, बट स्टिल इंडिया वांटेड that Bangladesh will grow. Then India is naturally, it is a gateway for India also to the whole northeast. BIMSTEC का part भी है. So rather than going by the narrative of what media says and authoritarian and all that, you have to focus upon the keywords: India Bangladesh cultural relations, India Bangladesh strategic relations, India Bangladesh connectivity, India Bangladesh water issue या बाकी issues थे वो भी कैसे justifiably अब तक जो उसमें sorting हुई है वो और आगे कैसे होगा. All these elements you have to see rather than just saying कि भाई people to people connectivity is very high as far as India Bangladesh is concerned, and in case of intellectual society and intellectual community is concerned, CAA का रोल जरूर आता है इस कॉन्टेक्स्ट में, जो हमारे इंडिया में बात उठाई जाएगी स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेस्ट बंगाल कि वहां से रिफ्यूजीज आते हैं कैसे होता है. तो मतलब वी हैव टू सी फ्रॉम अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव एंड दैट्स हाउ यू हैव टू सी. इशू ऑफ इंस्टीट्यूशनल वायलेंस, इशू ऑफ इंस्टीट्यूशनल वायलेंस. सो इंडिया में आप क्या कहेंगे रूरल इंडिया में औशिक, इंस्टीट्यूशनल वायलेंस है? हाँ सर, वो जो फैमिली हो गया, फैमिली एज ए इंस्टीट्यूशन हो गया, वो भी है. फिर एट द सेम टाइम लोकल बॉडी, खाप पंचायत, और वो कैसे Okay. उनका तो इंस्टीट्यूशन Wonderful. कस्टम Yeah. ट्रेडिशन उसके कारण बोल सकते हैं. We can agree with that. So thank you very much to all of you for your contribution and for your support. Wishing all of you all the best. Watch, listen and get success with Ansarkari. थैंक यू सर.